Hello students, how are you? I am R.P. Verma. Today we are going to discuss the other legal expressions under Indian Contract Act. These are quasi-contract, agency, vassing agreements and contingent contracts. Dear students, in our last class we discussed what is the meaning of expressed contract, implied contract, executed contract, executory contract. We discussed the concept of contract of indemnity, contract of guarantee, contract of insurance. We discussed the concept of bailment, the concept of pledge. In the same manner, not making myself limited within the parameters of definition or the exact word of definition, I would like to tell you the meaning of these concepts. No doubt, we will discuss the definition and actual language prescribed in the Act. No doubt. But when we will discuss the chapter, we will do. Today, first of all, I would like to tell you about the meaning of quasi-contract. Dear students, there is no such word in the Indian Contract Act. There is no word quasi-contract. It is just a term we use to explain the circumstances prescribed under section 68 to 72. What I mean to say? There is a principle that no one can be enriched at the cost of another. हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे के धन से धनवान नहीं हो सकता. This is principle of unjust enrichment. It means there may be certain circumstances when one person gets benefits from the acts of another person, and such person who gets the benefit does not pay any compensation to the person who makes certain acts, and the other person who is giving these benefits wants to take the claim. But unfortunately, there was no contract between the parties. Then what should we do? Our judiciary apply one of the sections among 68 to 72 and provide compensation to the person who provides benefits. Let me explain. एक प्रिंसिपल है हमारा कि कोई पर्सन किसी दूसरे के धन से धनवान नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पड़ोस में मिस्टर एक्स रहते हैं.
वो कहीं बाहर चले गए, घर पे लॉक लगा हुआ है, एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश की वजह से उनके बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो डैमेज हो जाती है। मिस्टर एक्स घर पे नहीं है, लॉक लगा हुआ है, और मिस्टर एक्स ने मुझे भी नहीं कहा कि वर्मा जी हम जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने क्या किया, एक मिस्त्री बुलाया, उस बाउंड्री वॉल को रिपेयर करवा दिया। कुछ दिन बाद मिस्टर एक्स आए। जब उनको ये बात पता चली कि मैंने ऐसा किया, कि थैंक यू, मैंने कहा भाई साहब थैंक से काम नहीं चलेगा। इस बाउंड्री वॉल को रिपेयर करवाने में मेरे 4000 रुपीज लगे हैं, आप मुझे ये 4000 रुपीज पे करें। लेकिन सामने वाले ने, मिस्टर एक्स ने क्लियर मना कर दिया, सॉरी सर आई कांट, बिकॉज देयर वाज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन मी एंड दैट पर्सन। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी सब। अब अगर ये मामला कोर्ट में आता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लॉ हमारे पास प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या हो, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे वो तो यही है कि साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट है और कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरे पर्सन को, एग्रीड पर्सन को हम कंपनसेशन दिलवाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। बट स्टूडेंट्स, one thing keep in your minds that all these laws, especially we are talking about the Indian Contract Act, it is nothing but mere a creation of law of equity. There are so many principles of equity. We apply all these principles under law of contract. इक्विटी का बड़ा सिंपल सा मतलब आप यहां समझिएगा, डिस्क्रिशनरी पावर टू रीच द जजमेंट। अब जज साहब जो है उनके सामने जब ये मामला आता है तो वो ये देखते हैं कि यार यहाँ पे अगर एग्रीमेंट होता पार्टीज के बीच में तो यहाँ पे हम जरूर जो है वो वर्मा जी को उनके 4000 दिलवा देते। लेकिन सामने वाली पार्टी मिस्टर एक्स सिर्फ इसीलिए पेमेंट नहीं कर रहा बिकॉज देयर वाज नो एग्रीमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? लॉ ऑफ इक्विटी अप्लाई की और ये कहा ओके देयर वाज नो एग्रीमेंट, प्रिज्यूम देयर वाज एग्रीमेंट। लो साहब, फर्क सिर्फ इतना सा था कि एक्स में और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। अब कोर्ट ने मान लिया कि एग्रीमेंट था, करो पेमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जिनमें अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन आती और कंपनसेशन की बात होती, लेकिन इनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर्कमस्टांसेस बिल्कुल उसी तरह से है कि एक पार्टी का नुकसान हो रहा है और दूसरे का बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इन पार्टीज के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर देगा, थोप देगा, कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में। Such circumstances which are resemble to a contract, such contract is called quasi contract. तो इसका मतलब क्या हुआ कि when I make a proposal and you accept and there is a consideration enforceability by law, it means we have a contract, but there is no proposal, there is no acceptance. But circumstances are there when we presume that there is a contract. Such contract is called quasi contract. Now let me explain another thing, concept of
agency? First of all, there is no definition of agency in Indian Contract Act. Only section 182 provides the definition of principal and agent, and on the basis of the definitions of principals and agent, we can say the relationship between principal and agent is called agency. हम इसका एक कंप्लीट चैप्टर करेंगे बच्चों. अभी सिर्फ आप एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा. हर कहीं एजेंसी के कंसेप्ट काम नहीं आती. हमारे पास एक लैटिन मैक्सिम है, क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से. आप इसको यूं कह सकते हैं, one who can do something can get done through others. जब कोई काम आप खुद कर सकते हैं, आप दूसरों से करवा सकते हैं. It means the person who is doing something under your supervision, under your control, under your guidance, he is agent and you are the principal. And the relationship between that person and you is called agency. अब आप इस प्रिंसिपल को दोबारा समझिएगा. One who can get something can get done through others. जो काम आप खुद कर सकते हैं, वही काम आप दूसरों को करवा सकते हैं. मुझे बैंक में पेमेंट जमा करवानी है, ये काम मैं खुद कर सकता हूं. मैंने मिस्टर एक्स को कहा कि आप मेरे लिए पेमेंट बैंक में जमा करवा दें. नाउ ही इज माय एजेंट. मेरी एक बिल्डिंग है, आई कैन सेल दैट बिल्डिंग, नो प्रॉब्लम. मेरे पास टाइम नहीं, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि प्लीज आप मेरी बिल्डिंग सेल करवाइए. वो काम मैं कर सकता हूं, मैं उससे भी करवा सकता हूं. ही इज माय एजेंट. लेकिन आप देखिएगा, मेरे पड़ोस में जो घर है, मैं उसमें आग लगाना चाहता हूं, मैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं. क्या मैं ये कर सकता हूं? आई कांट. दिस इज अ क्राइम. अब मैं मिस्टर एक्स को कह रहा हूं कि तू जितना मर्जी पैसा ले ले, लेकिन ये काम कर दे. 1,00,000 रुपए ले ले, पर ये काम कर दे. क्या वो मेरा एजेंट है? एजेंट तो तब होगा ना जब यहां एजेंसी की कंसेप्ट होगी. जो काम मैं खुद नहीं कर सकता, वो मैं दूसरे से भी नहीं करवा सकता. इट मीन्स क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के अंदर कभी भी एजेंसी की कंसेप्ट नहीं आती. बड़ी सिंपल सी बात है. इफ देयर इज समथिंग यू कैन डू, गेट डन थ्रू अदर्स, अदरवाइज एजेंसी इज नॉट पॉसिबल. इसी तरह से मैक्स के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे आपसे पेंटिंग बनवानी है. उसने कहा सर बिल्कुल मैं ये पेंटिंग बना दूंगा, you will have to pay me ₹5,000. मैंने कहा ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. 5,000 रुपए में एक्स ने मेरे लिए एक पेंटिंग तैयार कर दी. मैंने उसके पास पेंटिंग लेने गया तो उसने कहा कि सर आप एक काम कीजिएगा, आपको मैं एक एड्रेस बताता हूं, आप वहां जाइएगा, वहां आपकी पेंटिंग पड़ी है. मैं गया, मैं वहां पे जब मैं देखा, मैं कहा ये तो यार मिस्टर वाई है जिसने पेंटिंग बनाई, जबकि मेरी बात तो किससे हुई थी? एक्स से हुई थी. मैंने वो पेंटिंग ली नहीं. मैं वापस एक्स के पास गया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, पेंटिंग तो मैंने आपसे बनवानी थी, आपने ये वाई को कैसे दे दिया? कि सर मेरे को मेरा एजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे यार भाई ये क्या मतलब हुई? मेरी डील आपसे, पर्टिकुलर आपसे हुई है. अगर मुझे वाई से पेंटिंग बनवानी होती तो ये तो मैं 2500 में ही बनवा लेता. तो क्या बच्चों यहां पे एजेंसी पॉसिबल है? यहां पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर भी एजेंसी पॉसिबल नहीं है. Well, there is a contract on the basis of personal skills. One of the parties, agency is not possible.
एजेंसी इज नॉट पॉसिबल। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहां पे आपको जो बेनिफिट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन स्किल ऑफ दैट पर्सन है, वो आगे एजेंसी क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसको हम फाइटली चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिएगा कि सिविल मैटर्स के अंदर एजेंसी की कंसेप्ट है, क्रिमिनल मैटर्स में एजेंसी की कंसेप्ट नहीं है। पहली चीज, सिविल मैटर्स में भी वहां पे एजेंसी की कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट हो। अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वेजनिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये दो चीजें क्या है। मेरे 17 इयर्स के एक्सपीरियंस में जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वेजनिंग और कॉन्टिंजेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बिलीव करते हैं कि वो खुद पढ़ सकते हैं, अगर आप इनका डिफरेंस नहीं कर पा रहे तो इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। लैंग्वेज थोड़ी सी अदर कंसेप्ट्स की बजाय अगर हम बात करें तो थोड़ी सी यहां मुश्किल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजनिंग एग्रीमेंट की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वैलिड है कि वॉइड है। देखिए, वेजन का मतलब होता है, हिंदी में इसको लिखा जाता है बाजी के करार। मतलब जैसे सट्टा मार्केट के अंदर जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 हमें ये कहता है when there is an agreement based on a future uncertain event happening or non happening, इसका मतलब एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है जिसकी हैपनिंग भी हो सकती है और नॉन हैपनिंग भी हो सकती है। मैं प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बता रहा, सिर्फ उसके जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक तो फ्यूचर की इवेंट है और दूसरा अनसर्टेनिटी है, होगा भी कि नहीं होगा। इन सच सर्कमस्टांसेस द एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 30। अब कैसे समझिएगा इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि यार आज मेरे को ये लग रहा है कि बारिश होगी, एक्स कह रहा नहीं सर आज बारिश नहीं होगी। मुझे लगा शर्त, उसने कहा सर लगा लो। मैंने कहा अगर बारिश हुई तो यू विल हैव टू पे मी ₹500, अगर नहीं हुई तो मैं आई विल पे, नो प्रॉब्लम। कैसा रोके। अब आप देखिए तो बच्चों, बारिश का होना ना होना फ्यूचर इवेंट है, होगी कि नहीं होगी अनसर्टेन इवेंट है, होगी हैपनिंग, नहीं होगी नॉन हैपनिंग। सारी के सारे वही एलिमेंट जो सेक्शन 30 में आपको बताए हुए हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट यहां पे मौजूद है। और सेक्शन 30 हमें ये कह रहा है कि सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि लो साहब बारिश नहीं हुई, अब एक्स कह रहा है कि लाओ सर पैसे दो 500 रुपए, मैंने नहीं दिए, एक्स कोर्ट में जा रहा है, चला जाएगा, जाओ। क्या कानून उसकी मदद करेगा? नहीं। सेक्शन 30 ऑलरेडी ये मना किया है कि आपको इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं करने। तो बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे एग्रीमेंट जो फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है, अनसर्टेन है, वो वेजनिंग है और वॉइड है। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स भी हैं जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर उनको कानूनन परमिट किया जाए, जैसे हॉर्स रेस के मामले हैं या कोई पर्टिकुलर क्विज है, कंपटीशन है, या
लॉटरी सिस्टम है आपका परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपके सेक्शन 30 को कवर करती है, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट ने परमिट किया है तो वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन में नहीं आती। जब हम वेजरिंग एग्रीमेंट का चैप्टर करेंगे तो हम इसको बड़ा डेप्थ में हम इस चैप्टर को इन पॉइंट्स को सारों को देखेंगे। अभी सिर्फ आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जो फ्यूचर इवेंट, अब देखो हर फ्यूचर इवेंट भी अनसर्टन नहीं होती है। जैसे एक्स के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी, तो एक्स तो मरेगा ही भाई, आज नहीं तो कल मरेगा, तो फ्यूचर इवेंट है लेकिन सर्टन है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर इवेंट हो और अनसर्टन हो, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके अंडर सेक्शन 30 वॉइड होंगे। अब आप आ जाइए बच्चों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर एक बार हम वेजरिंग की बात करेंगे ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 बच्चे जब आप पढ़ोगे तो एक वर्ड उसके अंदर आएगा कोलेटरल। बस इसी एक वर्ड को आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मैं एक शॉप पे गया और मैंने शॉपकीपर से कहा कि भाई मुझे आप एक एलसीडी दिखा दीजिए, 41 इंच की एलसीडी मुझे चाहिए। बहुत सारी एलसीडी उन्होंने दिखाई और उन्होंने कहा कि सर अगर ये एलसीडी आप ले जाए ना तो इसकी 2 ईयर फुल गारंटी है। विद इन 2 ईयर अगर इस एलसीडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये एलसीडी भी आपकी और जो आपने पैसे दिए वो भी आपके, और जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो हमारा। क्या और मुझे क्या चाहिए भाई, और मुझे क्या चाहिए? मैंने वो एलसीडी ले ली। अब आप देखिएगा बच्चों, उस एलसीडी का विद इन 2 ईयर खराब होना ना होना फ्यूचर अनसर्टन इवेंट होगी कि नहीं होगी? तो ये तो आपका क्या हो गया, वेजरिंग हो गया। नो, इट इज नॉट वेजरिंग बिकॉज इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। ये कोई स्वतंत्र करार नहीं है। इससे पहले एक ऑलरेडी एग्रीमेंट आप लोगों के बीच में हो चुका है, ये तो उसके कोलेटरल है। बस यही बात आपको समझनी है। मैं उस शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं उससे एलसीडी खरीदता हूं, वो एलसीडी मुझे दे रहा है। एक एग्रीमेंट तो ये हो गया और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब दूसरा एग्रीमेंट ये है कि विद इन 2 ईयर अगर उस एलसीडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इस दूसरे एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप फर्क समझिएगा कि जो सेक्शन 31 में मैंने आपको बताया और सेक्शन 30 में मैंने बताया, उनमें फर्क क्या है। जब हम किसी फ्यूचर की बात करते हैं और सच ट्रांजैक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। बट व्हेन इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, इट इज बेस्ड ऑन ए लॉफुल agreement, a valid agreement, it is called contingent contract. इसे हम क्या कहेंगे, contingent contract कहेंगे। भाई एक एक्स मेरे पास आता है, कहते हैं सर मेरे को ये माल जो है वो गंगानगर से दिल्ली पहुंचाना है। मैं भाई पहुंचा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सर माल पहुंच तो जाएगा? भाई माल आपका पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करो। कि सर अगर माल नहीं पहुंचा तो? भाई अगर माल नहीं पहुंचा तो जो आपका नुकसान होगा वो मैं पे करूंगा, जो आपका नुकसान होगा वो मैं पे करूंगा। अब देखिए बच्चों, यहां कितने एग्रीमेंट हुए? 2 हुए। कैसे? एक तो वो मुझे पे करेगा, मैं उसके माल को लेके जा रहा हूं, एक एग्रीमेंट तो ये हो गया। दूसरा एग्रीमेंट, वो माल टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो मैं लायबल हूं। तो ये जो दूसरा एग्रीमेंट है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पहले एक एग्रीमेंट हो चुका है, उस पर बेस्ड है, इसलिए हम इस दूसरे को वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं मानेंगे, कॉन्टिंजेंट में मानेंगे। अब जब हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो एक बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट है और ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन है। दूसरा आप ये देखिएगा, वेजरिंग एग्रीमेंट में किसी भी पार्टी का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, लेकिन यहां पे कॉन्टिंजेंट जो है उसके अंदर जो प्रॉमिसर है सिर्फ उसी का लॉस हो सकता है, दूसरी पार्टी का नहीं। तीसरा, वेजरिंग में
एक तरफा, मतलब यूं समझ लीजिएगा एक तरफा ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं, भाई बारिश हो गई तो वो पे करेगा, नहीं हुई तो मैं पे करूंगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तरफा बात हो रही है तो कौन सा कंसिडरेशन है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा, जब मैं ये कहता हूं कि साहब अगर माल टाइम पे नहीं पहुंचा देन आई विल पे, तो मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये जो ग्रोथ है ये मेरा कंसिडरेशन है। तो ये थोड़ा सा आप इन कंसेप्ट्स को समझिएगा। बाय टच ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं आपके। मैंने कोशिश की है कि मैं इनकी मीनिंग आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ गए हैं तो एक बार इनके डेफिनेशंस पे जाइएगा। जैसे सेक्शन 68 से लेकर 72 तक का जो पार्ट है उसमें खाली आप एक बार मेरे कहने से 69 पढ़िएगा तो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। फिर अपन जब चैप्टर करेंगे तो 1 बाय 1 सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। 182 की जो बेसिक कंसेप्ट है बस आप वो पढ़िएगा तो आपको एजेंसी की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सेक्शन 30 और 31, 30 में आपकी वेजलिंग एग्रीमेंट है, 31 के अंदर आपका कंटिजेंट है। तो 30 में आपका ये हो गया, 31 में आपका ये हो गया। इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ने के बजाय एक बार आपको अगर डिफरेंस मिल जाए तो सीधा उस डिफरेंस को पढ़िएगा, फिर इनकी डेफिनेशन पे आइएगा। तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस बच्चों हमने समझ लिए। कल एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया और बड़ी अच्छी बात उन्होंने पूछी, जब आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट जो है उनका ये पूछना था कि सर हमें लो समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि हम सेक्शंस याद नहीं कर पाते। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि हमें केस लॉज याद नहीं होते। तो बच्चों मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कोई अल्टरनेट नहीं होता। अब समझिएगा कि हम लोग के स्टूडेंट्स में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है। आज एक लेबर करने वाले मजदूर से अगर आप ये पूछें कि भाई अगर मैं किसी 10-12 साल के लड़के को पैसे देके अगर कोई काम करवाऊं और वो मेरा काम ना करे तो बताओ क्या होगा? तो भले ही वो सामने वाला जिस पर्सन से आपने ये बात पूछी है वो एक अनपढ़ पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, बेचारा कभी स्कूल तो गया ही नहीं, लेकिन वो भी बता देगा कि यार आपने एक बच्चे से कैसे डील कर ली, वो भी बता देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये बात कानून में कहां लिखी हुई है। उसको ये नहीं पता कि ये बात कौन सी केस के अंदर जो है वो हमारी जुडिशरी ने कही है। तो फर्क क्या है दूसरे लोगों में और हम लोग के स्टूडेंट्स में? वी नो द एक्चुअल सोर्स ऑफ लॉ, दे डोंट। इसलिए बच्चों ये बात अपने दिमाग में कभी आने ही मत दो कि आपको केस लॉ याद नहीं हो रहे हैं, कि आपको सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं। मेरे को 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे सेक्शंस आज भी मुझे देख के बोलने पड़ते हैं, मुझे याद नहीं होते। वो ऐसे सेक्शंस हैं बच्चों जो मैं रिपीट नहीं करता, और जो रिपीट हो जाते हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो हमारे पास तरीका क्या है? तरीका एक ही है बच्चों, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपके हाथ में पेन नहीं है तो याद रखिए आप सेक्शंस और केसेस याद नहीं कर सकते। आप उनको सुनिए, उनको पढ़िए और नोट कीजिए। और ये बात कभी दिमाग में मत लेके आइए कि आपको क्वेश्चन ये सेक्शंस याद क्यों नहीं हो रहे, आपको केसेस याद क्यों नहीं हो रहे। यू विल हैव टू, अगर आप जुडिशरी में आना चाहते हैं, अगर आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं, अगर आप लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर आप मेरी तरह टीचिंग में आना चाहते हैं,
then you will have to, आपको ये सब करना पड़ेगा। कोई अल्टरनेट नहीं है। शुरू में सबके सामने ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करेगा दैट इज योर पेन। लिखने की आदत डालिए और आज का काम कल पे मत डालिए। आज हमने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं। कल हमने खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं। परसों का ही खाना खाएंगे, हम पहले 2 दिनों का नहीं खा सकते। आज अगर आपने कोई चीज सोची है और उसे आप नहीं पढ़ पाए, तो कल आप आज वाले को मिक्स मत कीजिए, कल का काम कल वाला ही कीजिए। इस प्रैक्टिस से आपको आदत हो जाएगी कि यार आज वाला काम कल नहीं करना, तो आज वाले को क्या करो, आज ही करो। टाइम इज योर। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू, देयर इज नो अल्टरनेट। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई शुरुआत की है मैंने इस लॉकडाउन में, ये टाइम मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। आगे इसी तरह से आपको मेरी क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।